Good morning students, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself Amrish Sharma from Shivjyoti Educational Group Kota. Now today we will discuss about table creation and data manipulation commands part first chapter number 17 of class 11. In this chapter, we will discuss about databases in MySQL, creating tables, changing data with DML commands, more DDL commands. Student, you know very well what is DBMS, MySQL, ठीक है, simple MySQL commands, ठीक है, select command. तो ये सारी commands हमने already देख चुके हैं. Now let's see more commands. You have learned a lot about working in MySQL. So far, you have learned about writing simple SQL statements and using MySQL function in queries. This chapter is going to introduce many new and useful commands of SQL. In this chapter, we shall be discussing some more commands that let you create tables, add data in tables, modify, change data in table, delete tuples from tables, etc. तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे क्रिएट टेबल्स इन DBMS, ऐड डेटा इन टेबल्स. तो उन जो टेबल्स हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम कैसे हाउ टू ऐड डेटा, मॉडिफाई एंड चेंज डेटा. आपने एक बार टेबल में डेटा ऐड कर दिया तो उसको आप कैसे मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे. डिलीट टपल्स, टपल्स मीन्स रो. तो हाउ टू डिलीट अ टपल्स इन अ डेटा बेस और टेबल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल databases in MySQL. Before you start creating tables, you need a database. तो स्टूडेंट टेबल आप किस में क्रिएट करते हैं? डेटाबेस में. जिस तरह से आप नॉर्मल विंडो में फोल्डर बनाते हैं और फोल्डर के अंदर सारी फाइल सेव करते हैं, सेम वही प्रोसेस होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें डेटाबेस में टेबल्स बनानी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डेटाबेस क्रिएट करना है, विच इज द कंटेनर ऑफ टेबल्स. द डेटाबेस एक्ट्स एज अ central point of administration for the tables in the database. The actual data is stored in the tables, which provide a structured organization for the data and maintain the integrity of that data. To create tables, either you can create a new database or use an existing database. MySQL provides an empty database by the name test, which you can use to store your tables in it. तो by default MySQL में आपको एक डेटाबेस प्रोवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट. तो by default जितनी भी आप टेबल बनाएंगे वो सब किस में जाएगी? टेस्ट डेटाबेस में. बट आपको अपना खुद का डेटाबेस बनाना है और उसी के अंदर आपको अपनी टेबल्स सेव करनी है. बट इट इज recommended that you create new database. You are going to learn how you can create databases in MySQL. So student, first of all we see creating databases. How to create a database in MySQL. Creating databases is an easier task relatively in simplest. From the create database command takes the following syntax. The syntax of creating database is first of all you write create keyword then database and database name. So create database MyDB. तो creates database having name as MyDB. तो यहाँ पे आपने एक database create किया है जिसका नेम है MyDB. Now create database if not exist MyDB. तो if not exist ये चेक करेगा कि पर्टिकुलर आपने जो MyDB डेटाबेस क्रिएट करने या पहले से तो आपकी जो SQL है उसमें बना हुआ नहीं है, ठीक है, क्रिएट तो नहीं है. तो क्रिएट अ डेटाबेस हैविंग नेम एज MyDB इफ देयर इज नो डेटाबेस बाय द नेम MyDB ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो MyDB पहले से तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारे SQL में. तो ये जो आपने कमांड लिखा है इफ नॉट एग्जिस्ट, तो ये किसके लिए लिखा हुआ है कि अगर पहले से MyDB हमारे
एग्जिस्ट कर रहा है एसक्यूएल में, तो ये आपका जो MyDB है वो नहीं क्रिएट होगा। नाउ ओपनिंग डेटाबेसेस स्टूडेंट, सो आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, अब उस डेटाबेस को क्या करना है, ओपन करना है फॉर द वर्क करने के लिए। नाउ क्रिएटिंग डेटाबेस इज नॉट इनफ, बिफोर यू क्रिएट टेबल इन इट you need to open the database. To open a database you simply need to write the statement as per following syntax. Use database name, तो आपको use कमांड यूज करनी है डेटाबेस को ओपन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टू ओपन MyDB database that was created just before, you need to write use MyDB। तो use कमांड से आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं। नाउ द ओनली थिंग यू नीड टू इंश्योर before opening a database is that it must already exist, it must be already created. To check the name to existing databases you may write following commands. तो स्टूडेंट जब आप use कीवर्ड यूज करते हैं और जो डेटाबेस का नेम आप लिख रहे हैं वो आपकी मेमोरी में एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पर क्या होगा, एरर आएगी। अगर आपको चेक करना है कि हमारे एसक्यूएल में कितने डेटाबेस हैं, उन सबके नेम अगर आपको चेक करने हैं, आप लिखेंगे शो डेटाबेसेस। तो शो कमांड क्या करेगी, पर्टिकुलर जितने भी डेटाबेस क्रिएट है आपकी मेमोरी में वो सारे डेटाबेस आपको शो हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज रिमूविंग डेटाबेसेस। यदि आपको किसी भी डेटाबेस को मेमोरी में से परमानेंटली रिमूव करना है तो आप कमांड यूज करेंगे। समटाइम यू नीड टू रिमूव अ डेटाबेस व्हेन यू do not need it anymore, but before making this decision you make sure that you don't need data stored in different tables of the database. This is because when you drop a database all its table also get removed along with the database. To remove a database you need to issue a command with following syntax. Yes student, तो जैसे आप डेटाबेस स्टोर करें रिमूव करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी टेबल्स हैं वो सारी टेबल्स भी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। जैसे फोल्डर है और फोल्डर के अंदर हमारी काफ़ी सारी फाइल्स है, तो जैसे हम फोल्डर को डिलीट करते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल हैं जो उस फोल्डर में स्टोर हैं वो भी क्या हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। लेट सिंटैक्स ड्रॉप, आप क्या कीवर्ड यूज करेंगे रिमूव करने के लिए डेटाबेस को मेमोरी से, ड्रॉप। तो ड्रॉप database and database name, that is to drop a database namely MyDB you will be writing drop database MyDB। तो database से जो MyDB है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग टेबल। स्टूडेंट आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, उसको यूज कर लिया, नाउ अब आप उसमें क्या करेंगे, आपकी जो टेबल्स हैं जिनके आप वर्क करेंगे वो टेबल्स आप उसमें क्रिएट करेंगे। तो नाउ लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ टेबल। टेबल्स आर डिफाइंड विद द क्रिएट टेबल कमांड। तो कौन सी कमांड आप यूज करेंगे, क्रिएट टेबल कमांड। व्हेन अ टेबल इज क्रिएटेड इट्स कॉलम्स आर नेम्ड, data type and size are supplied for each column. Each table must have at least one column. तो स्टूडेंट जैसे आप टेबल क्रिएट करेंगे तो व्हाट इज टेबल, टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जैसे आप टेबल डिजाइन करते हैं तो उसमें एक कॉलम आपको बनाना कंपलसरी है, ठीक है। और जैसे आप कॉलम डिजाइन करेंगे तो उस कॉलम से रिलेटेड डेटा टाइप, ठीक है, साइज, नेम, ये सब आपको मेंशन करना है। नाउ लेट्स सी इन सिंटैक्स। द सिंटैक्स ऑफ क्रिएट टेबल कमांड इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू राइट क्रिएट टेबल कीवर्ड, देन टेबल नेम, फिर कॉलम नेम, डेटा टाइप साइज, कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड साइज। इस तरह से आपको कॉलम नेम डिफाइन करने हैं, उनका डेटा टाइप डिफाइन करना है एंड साइज डिफाइन करनी है। नाउ टू क्रिएट एन एम्प्लॉय टेबल हुज स्कीमा इज एज फॉलोज, एम्प्लॉय, ई कोड, ई नेम, ग्रेड एंड ग्रॉस। तो हम एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम जो कॉलम्स यूज करेंगे वो है ई कोड, ई नेम, ग्रेड एंड ग्रॉस। नाउ स्टूडेंट let's see the SQL command will be create table employee। तो आपकी कौन सी टेबल क्रिएट हो गई है, एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है वो आपके डेटाबेस में क्रिएट हुई है। नाउ अब आपने फर्स्ट कॉलम नेम बनाया ई कोड और उसका डेटा टाइप दिया है आपने इंटीजर। मींस जो ई कोड का जो आपका कॉलम बनेगा उसमें ओनली आप इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। नाउ सेकंड कॉलम आपने बनाया ई नेम,
केयर, इसका जो डेटा टाइप है वो किस तरह का है, कैरेक्टर टाइप का, मीन्स आप इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर या अल्फाबेट स्टोर कर सकते हैं और उसकी आपने साइज भी दी है कि आप इसके अंदर 20 कैरेक्टर्स तक स्टोर कर सकते हैं। नाउ थर्ड ग्रेड, जो ग्रेड आपकी आएगी वो भी उसका जो डेटा टाइप है वो भी कैरेक्टर टाइप का है और उसके अंदर आप 2 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जो कॉलम हमारा बनेगा वो है ग्रॉस और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी और इंटीजर भी कैसी वैल्यूज आएगी, डेसिमल टाइप की, मीन्स पॉइंट वाली वैल्यूज को हम इस कॉलम में स्टोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और उसके बाद में आपको ये ब्रैकेट क्लोज करना है और सेमीकोलन का साइन लगाना है। तो जैसे ही आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे आपकी जो फोल्डर है उसके अंदर एक एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट हो जाएगी हैविंग फॉलोइंग कॉलम्स। नाउ data integrity through constraints. A constraints refer to a condition or a check that is applied to a column or set of columns in a table. Once an integrity constant is enabled, all data in the table must conform to the rule that is specifies. The two basic type of constants are column constants and table constants. The difference between the two is that column constants apply only to individual column, whereas table constants apply to group of one or more columns. तो स्टूडेंट 2 constants हम बेसिकली डेटाबेस में अप्लाई करते हैं, एक है कॉलम कांस्टेंट एंड सेकंड है टेबल कांस्टेंट। तो कॉलम कांस्टेंट जो है वो पर्टिकुलर किसके ऊपर अप्लाई होगा, एक कॉलम के ऊपर अप्लाई होता है, जबकि टेबल कांस्टेंट आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ई कोड इंटीजर नॉट नल। तो नॉट नल एक कांस्टेंट है जो हमने किसमें लगाया है, जो हमारा एक कॉलम है ई कोड उसके ऊपर, मीन्स पर्टिकुलर हम ई कोड वाले कॉलम की वैल्यू को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, नहीं उसमें हम नल पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ई नेम KR20 नॉट नल। यहाँ पर भी आपने नॉट नल कॉन्स्टेंट्स यूज किया है, मीन्स पर्टिकुलर ई नेम कॉलम को आप ब्लैंक नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेड KR2 एंड ग्रॉस डेसिमल। तो इस तरह से आपने यहाँ 2 कांस्टेंट लगाए हैं और दोनों कांस्टेंट्स किस पे लगे हुए हैं, आपके कॉलम कांस्टेंट्स पे। ओके स्टूडेंट, तो पर्टिकुलर ये जो कांस्टेंट आपने लगाया है ये इस ई कोड को ही इफेक्ट करेगा, बाकी कोड जो कॉलम्स हैं उनको इफेक्ट नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ डिफरेंट कांस्टेंट्स, these constants ensure database integrity, thus are sometimes called database integrity constant. A few of them are unique constant, primary key constant, default constant, check constant and foreign key constant. तो different constants हैं जो database पे apply होते हैं। First we discuss about unique constant. Unique means particular, अगर आपने किसी कॉलम पे unique constant अप्लाई किया हुआ है तो उसकी जो वैल्यू होगी उस कॉलम की वो कैसी होगी, यूनिक होगी। मीन्स सपोज किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है और आपने रोल नंबर को यूनिक की कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है, तो पर्टिकुलर अगर आपने किसी एक स्टूडेंट को रोल नंबर दिया है 101 तो वो यूनिक है उस स्टूडेंट के लिए। अब आप उस रोल नंबर को दूसरे स्टूडेंट को अलॉट नहीं कर सकते हो। दैट सी, this constant ensure that no 2 rows have the same value in the specified columns. For example, unique constants applied on e code of employee table ensure that no rows have the same e code values as shown below. Now let's see, create table employee, here e code integer not null unique। तो आपने यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट यूज किया है, यूनिक कांस्टेंट, और ये किस पे है, ई कोड पे। मीन्स ई कोड की जो वैल्यू होगी वो किसी भी 2 रोज के लिए सेम नहीं हो सकती। नाउ नेक्स्ट इज ई नेम, ग्रेड एंड ग्रॉस, और इस तरह से आपने एक टेबल क्रिएट की है विद यूनिक कांस्टेंट पे। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज प्राइमरी की कांस्टेंट। स्टूडेंट, किसी भी डेटाबेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका प्राइमरी की। विदाउट प्राइमरी की आप डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते। यदि आपको डेटाबेस बनाना है, आपको कोई टेबल बनानी है, तो उस टेबल में आपको एक प्राइमरी की
कंपल्सरी एक कॉलम ऐसा सेलेक्ट करना होगा जिसको आप एज अ प्राइमरी की बना सकें, और प्राइमरी की यदि आपने नहीं बनाई है तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो आपका डेटाबेस है, जो टेबल्स है आपकी, वो ही क्या कर लेगी, एक कॉलम ऐसा सेलेक्ट कर लेगी जिसको एज अ प्राइमरी की वो डिफाइन करेगी। तो प्राइमरी की वो की होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिक होती है, मीन्स पर्टिकुलर। अगर आपने वही सेम क्वेश्चन की अगर आपने एक कॉलम की वैल्यू डिफाइन कर दी है तो आप दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने रो में रोल नंबर 101 एक रो के लिए डिफाइन कर दिया, तो मैं सेकंड रो के लिए वो रोल नंबर यूज नहीं कर सकता। दिस कांस्टेंट डिक्लेयर्स अ column as the primary key of the table. This constant is similar to unique constant except that only one column or one group of columns can be applied in this constant. The primary keys cannot allow null value. Thus, this constant must be applied to columns declare as not null. Consider the following SQL statement. तो यदि आपको किसी कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन करना है तो आप लिखेंगे ई कोड इंटीजर नॉट नल प्राइमरी की। तो जिस कॉलम के आगे आपने लिखा हुआ है प्राइमरी की मीन्स पर्टिकुलर, वो अब क्या बन गया है आपका प्राइमरी की। बट प्राइमरी की में आप किसी भी कॉलम को नल डिफाइन नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, ये आपका एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट। देयर आर डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड प्राइमरी की कांस्टेंट. Those both ensure unique value for each row in a column, but unique allows null value whereas primary key does not. Okay student, तो it's a basically difference यूनिक की एंड प्राइमरी की। यूनिक की में आप नल वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं बट प्राइमरी की में आप नल वैल्यू अलाउ नहीं कर सकते। मीन्स प्राइमरी की यदि आपने किसी कॉलम में डिफाइन कर रखी है तो आपको सारी वैल्यूज, उस कॉलम की सारी वैल्यूज डिफाइन करनी है। ओके स्टूडेंट, also there can exist multiple column with unique constant in a table, but there can exist only one column or one combination with primary key constant. Okay student, तो unique constant को आप multiple columns पे apply कर सकते हैं but primary key only single column पे ही apply होगी। तो ये एक basic difference है किसमें, primary key constant and unique constant में। Okay student, now next is default constant. A default value can be specified for a column using the default clause. When a user does not enter a value for the column having default value, automatically the defined default value is inserted in the field. Consider the following SQL statement. Yes student, तो default constant में क्या होगा कि पर्टिकुलर किसी भी कॉलम को आप क्या कर देंगे, किसी वैल्यू को आप डिफाइन कर देंगे, तो जैसे ही आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उस कॉलम में आप वैल्यू नहीं देंगे तो जो वैल्यू आपने सेट कर रखी है बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू वहां पे आके स्टोर हो जाएगी। लेट्स सी एन एग्जांपल, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ई कोड इंटीजर नॉट नल प्राइमरी की ई नेम KR20 नॉट नल और ग्रेड कैरेक्टर टू डिफॉल्ट E1। सपोज जब आप इस टेबल में एंट्री कर रहे हैं और जब आप ग्रेड कॉलम पे आके एंट्री करते हैं तो सपोज आपने एक कॉलम जो है उसको ग्रेड दिया, एक रो में आपने ग्रेड दिया A, एक में दिया B, एक में दिया C और एक में आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो जिस कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ेंगे वहां पर क्या आ जाएगी, ग्रेड E1। तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज check constant. This constants limits values that can be inserted into a column on the table. Consider the following SQL statement. For create table employee, e code आपने लिया, e name, grade and gross. तो जो gross है, gross पे आपने यहाँ पर check constant यूज किया है, check gross is greater than 2000। तो जैसे ही आप gross कॉलम में आएंगे तो वहां ये चेक करेगा कि पर्टिकुलर जो इसकी वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 2000 से ज्यादा होनी चाहिए। सपोज यदि आप एंट्री कर रहे हैं और वैल्यू 2000 से कम है तो वो एंट्री आपकी नहीं होगी, यानी कि उस जो ग्रॉस जो आपका कॉलम होगा उसमें ये सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को अलाउ करेगा जिनका ग्रॉस क्या है, 2000 से मोर है। ठीक है, 2000 से ज्यादा है।
This statement ensures that the value inserted for gross must be greater than 2000 when a check constant involves more than one column from the same table being defined. Okay student, now next is foreign key constant. In an RDBMS, tables reference one another through common field, and to ensure validity of references, referential integrity in enforced. Referential integrity is a system of rules that a DBMS uses to ensure that relationship between records in related tables are valid and that users don't accidentally delete or change related data. Referential integrity is ensured through foreign key constant. Whenever two tables are related by a common column or set of columns, then the related column in a parent table or primary table should be either declared as a primary key or unique key, and the related columns in the child table or related table should have foreign key constant. तो स्टूडेंट फॉरेन की कांस्टेंट का क्या कॉन्सेप्ट है कि सपोज यू हैव टू टेबल्स, आपके पास में टू टेबल्स हैं, पर जो प्राइमरी टेबल, एक प्राइमरी टेबल है या मास्टर टेबल बोल लीजिए और एक चाइल्ड टेबल बोल लीजिए, तो मास्टर टेबल में भी एक कॉलम कॉमन है और चाइल्ड टेबल में भी एक कॉमन जो है वो कॉमन मीन्स दोनों टेबल में एक कॉलम क्या है कॉमन है। जैसे जो हमारी मास्टर टेबल है उसमें कॉलम है रोल नंबर, और जो हमारी चाइल्ड टेबल है उसमें भी क्या है एक कॉलम है रोल नंबर। तो जो मास्टर टेबल है उसमें जो रोल नंबर है वो तो क्या बन गया एज अ प्राइमरी की, बट यदि हम बात कर रहे हैं चाइल्ड टेबल की, तो चाइल्ड टेबल में जो रोल नंबर कॉलम है वो हमारा क्या बन जाएगा एज अ फॉरेन की। ओके स्टूडेंट, नाउ इफ वी हैव फॉलोइंग टू टेबल्स आइटम्स, item number, description, price and QH, and order, order number, order date, item number and Q quantity। तो here item table में जो item number है और orders table में जो item number, ये दोनों में क्या है common column है। तो first हम बात कर रहे हैं items की, तो items में जो हमारा item number है वो यहाँ पर क्या डिक्लेयर होगा as a primary key, बट यदि हम बात कर रहे हैं orders की, तो orders में जो आइटम नंबर है वो एज अ फॉरेन की डिफाइन होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट इज व्यूइंग अ टेबल स्ट्रक्चर। यदि स्टूडेंट आपको क्या देखना है, आपकी टेबल का स्ट्रक्चर देखना है कि पर्टिकुलर आपकी टेबल्स में कितने कॉलम्स हैं, कि उन कॉलम्स का क्या क्या डेटा टाइप डिफाइन कर रखा है, उनकी साइज क्या है, तो और कितने प्राइमरी कांस्टेंट है या कितने कांस्टेंट हमने उसमें यूज कर रखे हैं, तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे। तो let's see viewing a table structure. Once you have created a table, you may want to view its structure. Anytime if you view an already created existing table structure, you may use DESC command of MySQL. The syntax of this command is as follows. तो आप लिखेंगे DESC जिसको हम बोलते हैं description table name, तो DESC table name। Let's see an example. If you write DESC pet, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं describe pet, तो क्या होगा पर्टिकुलर जो आपकी pet नाम की टेबल है उसमें फील्ड है नेम, ऑनर, स्पेसीज, बर्थ एंड डेथ, और ये उसका डेटा टाइप है वेयर केयर, वेयर केयर, वेयर केयर, डेट एंड डेट, या वो नल है, ये उससे की अगर कोई उसमें होगी डिफॉल्ट वैल्यू है या कोई एक्स्ट्रा चीज होगी, तो सारा ये आपको क्या दिख गया है, इसका स्ट्रक्चर दिख गया है टेबल का। Now, once you have created tables in your database, you can check the call tables name in the database. To check what all tables are there in database, simply write show tables. तो स्टूडेंट सपोज आपने डेटाबेस क्रिएट किया और डेटाबेस में नंबर ऑफ टेबल्स आपने क्या कर रखी है, क्रिएट की हुई है, बट आपको देखना है कि हमारे डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं, वो सारी टेबल्स आपको शो करनी है। तो उसके लिए आप कमांड लिखेंगे शो टेबल्स। तो शो टेबल्स कमांड क्या करेगा कि जितनी भी जो आपका डेटाबेस है उसमें जितनी भी नंबर ऑफ टेबल्स होंगी वो सारी टेबल्स आपको शो होंगी। स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। तो आपको एक नई टेबल बनानी है
पहले से बनी हुई टेबल को यूज करते हुए। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। You can define a table and put data into it without going through the usual data definition process. This can be done by using select statement with create table. तो create table में आपको कौन सा statement use करना है, select table statement. The new table stores the result produced by the select statement. The name of the new table must be unique. पर पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है कि जो आप न्यू टेबल बना रहे हैं उसका जो नेम है वो कैसा होना चाहिए, यूनिक। मीन्स वो नेम पहले से डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट क्रिएट टेबल ORD item as select I code description from item where QOH is less than rule। तो क्या होगा कि जो आपने एक टेबल बनाई है ऑर्डर आईडी, उसके अंदर आई कोड एंड डिस्क्रिप्शन 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। और कौन सी टेबल से लिए हुए हैं, आइटम्स टेबल से लिए हुए हैं। यहाँ हमने कंडीशन लगा रखी है कि QH जो है उसका वो लेस देन होना चाहिए किससे, रोल से। नाउ दिस विल क्रिएट अ न्यू टेबल कॉल्ड ऑर्डर आइटम। तो इसने क्या किया है, एक नई टेबल बनाई है जिसका नेम है ऑर्डर आइटम, दैट स्टोर्स 2 कॉलम्स, जिसके अंदर 2 कॉलम्स है, आई कोड एंड DSCP, item code and description for the items that have their QOH less than role in the relation items. The newly created table order item will be look as it has shown below. तो पर्टिकुलर हमने क्या किया, जो हमारी मास्टर टेबल थी, मास्टर टेबल में से हमने 2 कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। और उन 2 कॉलम से हमने एक नई टेबल बनाई है जिसका न्यू नेम है, ठीक है। तो पहले से बनी हुई टेबल्स के कुछ कॉलम्स को लेके हमने एक नई टेबल क्रिएट की है। द टेबल ORD item has derived it contents from table items. Okay student, I hope you understood all the topic very well. Thank you.